कौन बोला है गुड मॉर्निंग? पहले अपने नाम दे दो मुझे पहले. जस्ट गिव मी योर नेम्स. So in the previous class that I took yesterday's class we discussed and I just explained you the lesson number 2, flying together. In that we came to know about the story that how the unity makes us strong. If we live united, then we will be strong. Okay. We also discussed some examples and I also gave you some short stories were told by the students also. Rajwal told one story and Medan told a story, and then you by certain examples you came to know that united we stand and divided we fall. If we are in union, then as you saw in the story also, the geese all together flew away and they could save their lives. Right? Correct? Okay. Now, today, what are we supposed to do? New words. Yes. New words. Meaning. Okay. सुन लिया मैंने. Take your notebooks out. Write the heading. सबसे ऊपर आपको date लिखना है. Already date is mentioned here. Date you have to write. Then you have to write lesson 2. And name of the lesson also you write. Flying together. Flying together. Okay. Lesson 2, date and name of the lesson. All these things you write. Then you will write the heading. What is the heading? New words. And what is the meaning? Why we write these new words? We write these new words because they are new for us and we have just come across these words. So you have to learn the spellings of these words also. As well as meanings also you should understand. Okay? Though I will be telling you the meanings, but अगर आपको कोई meaning नहीं आता है, तो you can also consult from your dictionary. सबके हाथ में आजकल मोबाइल है, डिक्शनरी है. Okay? Got it now? Okay. So I'm writing the words now. How many times you will write the word? One word, how many times you will write? 3 times. 3 times. 3 times. Yes. I will write only one time, but later अभी आप भी one time लिखोगे, है ना? बाद में आप अगर साथ-साथ लिख पाते हो तो लिख लो. So you have to write one word 3 times. Line में आपको ऐसे लिखना है. Okay? So I'm starting with this. Flock, geese, cripple, destroy. Now almost all you know all the meanings of these words. Still मैं बोलती जा रही हूँ साथ-साथ में ताकि आपको पता चल जाए. Conserved, existence, hunter, hunter with the animals. Conserved, existence, hunter, pity, advised, tender, मैम 8 के बाद नहीं दिख रहा. मैम 9 नंबर नहीं दिख रहा. 9 is advised. मैम 8 वाला क्या है? 8 is pity.
PITYPT. Advice. Building, grabbed, struggled, building, grabbed, struggled, fuss, carefully, pretend, mutter, and the last word is flapped. Flapped. Write it. I am giving you 2-3 minutes to note them down. जब लिख रहे हैं तो मन में स्पेलिंग्स भी बोलते चाहिए. ऐसा करने से आपको स्पेलिंग्स भी लर्न हो जाएगी साथ साथ. मन में बोलने को बोला, चीखने को नहीं. और जिसका माइक ऑन है उसकी तो घर आ जाऊंगी मैं भी. आपकी आवाज कैसे आ रही है मुझे? हम चाइनीज की सब्जी नहीं खाते ही. मैम राइट साइड का नहीं दिख रहा है. मैम साइड नाइस क्या है? मैम साइड प्लीज. मैम साइड प्लीज. आपको पता चल रहा है कि मैडम कुछ काम कर रही है? अटेंडेंस देख रही हूं मैं. वेट. यस, आप बोलो क्या बोल रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? किसको क्या प्रॉब्लम? मैम राइट साइड का. हाँ, ये लीजिए साइड हो गया. बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कैमरे में. एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है. हिमानी हैज कंप्लीटेड इवन. उसका कंप्लीट भी हो गया है. इश्मिता, मैम 13 नंबर पे क्या लिखा है? यू कैन सी क्लियर. मैम 13 नंबर पे क्या लिखा है? कौन है ये जो 13 नंबर वाला? कौन पूछ रहा है? मैम 13 नंबर पे. Then मैम struggled. 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 They struggled to come out of the net.
Now those who have completed, many comments I am getting, madam, I have completed, done. So those who have completed, they can start doing the meanings. Meanings are given at the end of the lesson. From a new page you will start. 1, 2, 3, 4, 5 meanings are given, and 5 more I will give you on the board. Last 1 minute. After 1 minute I will rub the board. अगर इन केस किसी का नहीं होता है, वैसे तो हो जाता है, मैं पूरा टाइम दे रही हूँ आपको, आई एम गिविंग यू मच टाइम, बट इन केस नहीं होता है तो मैं आइडिया दे रही हूँ आपको कि अगर आपका नहीं होता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आप इसका पिक्चर क्लिक करके रख लो, बाद में भी आप कर सकते हो अगर नहीं कंप्लीट होता है तो। बाकी वैसे ज्यादातर बच्चों को कंप्लीट हो गया है। Shall I rub the board now? Yes. Okay, so I am rubbing the board now. Now we will start doing the meanings. Open your books, lesson 2 और lesson 2 के नीचे जहाँ lesson खत्म हुआ है उसके just below new words के नाम से दिया हुआ है meanings. Can you see that? आपको दिखाई दे रहा है? तो शुरू करिए। Yes, ma'am. न्यू पेज पे लिखिए, हेडिंग डालो न्यू पेज पे meanings, हेडिंग डालेंगे meanings और लिखना शुरू करेंगे। So now the next page heading will be meanings. Since the lesson is finished, so we have written the new words and now we are going to start the meanings. Already I have told you 5 meanings are given at the back of the lesson. At the end of the lesson वो आपको नोट करने हैं। अखिलेश, क्या तुमने नोट करना शुरू कर दिया meanings? Yes, ma'am. Okay, कर लीजिए, पहले वो 5 meanings कर लीजिए और उसके आगे के meanings मैं आपको बोर्ड पे लिखवा रही हूँ। 6 से लिख रही हूँ मैं क्योंकि 5 are given at the back of the book. Fuss means worry. Don't make a fuss now. Fuss मतलब worry, चिंता। Pity. A feeling of sympathy. A feeling of sympathy. जब हमें किसी पे दया आती है, अरे यार इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, that is called pity. Tender means sensitive या soft. That's all. The meanings also we have finished. 5 meanings from the lesson and 5 meanings I have written on the board. So total 10 meanings are there. Okay, Prajwal?
Okay. Okay, Sarim, have you completed, Sarim? मैम मैम साइड प्लीज साइड दिख रहा है, नहीं दिख मैम रहा। साइड का नहीं दिख रहा, राइट साइड का नहीं। ये देखो सब दिखाई दे रहा है। डन मैम। डन मैम। No need to shout. Done, चिल्लाने की जरूरत नहीं है. If you have done, very good. क्या है? मैम 7 वाले में क्या लिखा है? A feeling of A feeling of sympathy. टूट जाएगा मोबाइल। किसका माइक ऑन है? माइक ऑन क्यों कर रखा है आप लोगों ने? मैम 10th वाले में ग्रेट एफर्ट के बाद भी कुछ लिखा है। नहीं. Great effort. That's all. मैम आई हैव अ डाउट। मैम Yes. 7 वाले में आ फीलिंग ऑफ के बाद क्या लिखा है? A feeling of sympathy. 2 बार तो बोल चुकी हूँ मैं अभी. A feeling of sympathy. 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 A feeling What of. is the meaning of sympathy? कौन पूछा ये? Who is asking? Tell me your name, please. मैम हर्षिता ने। हर्षिता. सिंपैथी मीन्स मैंने अभी बताया था कुछ टाइम पहले, शायद आपने सुना नहीं. सिंपैथी का मतलब जब हमें किसी पे दया आती है. अभी मैंने ये वर्ड ये लाइन मैंने बोली है. अरे इसके साथ ऐसा क्यों हुआ है? जैसे कोई बच्चा गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो आपके भी मन में दया आती है. अरे यार इसको क्यों लग गई, इसको क्यों चोट लग गई, है ना? आप उसके लिए थोड़ी दया करते हो. दैट इज कॉल्ड अ फीलिंग ऑफ सिंपैथी. अंडरस्टूड? ओके. Those who have completed the meanings also can write the first question. Note down the first question from the book. Where did the geese live? First question note करिए. मैम क्वेश्चन निकाल दिया। Shall I have the board now? Everyone has completed? Show me your thumbs up. Yatharth completed? Yes. Gaurav, have you completed, Gaurav? क्या कर रहे हो आप इतनी देर से? I am waiting for you, Gaurav, to finish. Once you finish, I'll rub the board. मैम 10th वाले पे क्या लिखा है? मैम 10th वाले पे क्या लिखा है? Struggle, great effort. Struggle, great effort. Gaurav, I'm rubbing the board now. Okay. Now note down the question number 1 from your books. कॉपी में फर्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे.
Already we have done the lesson, we have done the meanings, and now new words also finished. So we will take up to the question answer. So first question is, where did the geese live? And the answer is, क्वेश्चन लिखिए आप, मैं बोर्ड पे आंसर लिख रही हूँ, आप क्वेश्चन आंसर दोनों लिखना है. The geese lived in a tall tree. Full stop. जिसका आंसर 1 हो जाएगा तो क्वेश्चन 2 उतार लेगा बुक में से. If you have completed the answer 1, then you can do सर बोलने की जरूरत नहीं है. If you have completed the question number 1 and answer मैम number 1, साइड का नहीं दिख रहा. सब दिखाई दे रहा है. मैम दिखने लग गया. मैंने अभी कैमरा एडजस्ट किया है. बिना सोचे समझो, बिना देखे मत बोला करे बीच में. जब मैंने देखा कि नहीं दिख रहा है तो आई एडजस्टेड द कैमरा. अभी सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर. ऑलरेडी हमने लेसन पढ़ा है, 2 बार हमने एक्सप्लेन किया है. आपको पता है कि जो ओल्ड बर्ड था उसने उनको क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने को क्यों बोला. क्योंकि क्रीपर की मदद से कोई भी हंटर ऊपर चढ़ जाएगा और उन सबको मार सकता है. सो आई एम क्योंकि जब भी क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होता है, आपको मैंने पहले भी बताया है, जब वाई से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो आंसर में हम या तो सो यूज करेंगे या बिकॉज यूज करेंगे. सो बिकॉज इज मोर इजी. सो द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर. यहां तक तो पूरा क्वेश्चन में से लिया है. ओके, बिकॉज अब यहां से आंसर शुरू होगा. It would be harmful for the bees as the hunter could come up and kill all the birds with the help of the clipper. हिमानी बोर्ड दिखाई दे रहा है साहब? हिमानी? Okay. Yes, ma'am. Can you see the board clearly? सब कुछ दिखाई दे रहा है? आंसर पूरा दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Okay, आप बटन हिला के भी बोल सकती थी. प्रज्वल,
Can you see the board clearly? Yes, thank you. Christina? Okay, thank you. क्वेश्चन भी लिखे। क्वेश्चन तो लिखना ही है ना। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, सेकंड आंसर मैंने बोर्ड पे लिखा। सेकंड आंसर इज अ बिट लेंथी, थोड़ा सा बड़ा है। आप सेकंड आंसर लिखिए, देन वी विल डू द 3 4 5 6। मेरे को आज 6 क्वेश्चन तक पूरा खत्म करवाना है। 6 तक नहीं भी तो 5 तक तो करवाना ही है। मैम विथ द के आगे एक बार पढ़ दीजिए। With the help of the clipper. With the help of the. board is not clear. Who is telling this? नाम बताओ। मैम जतिन वर्मा। मैम जतिन, बाकी सबको कोड दिखाई दे रहा है क्लियरली? एवरीबॉडी कुड सी। मैम ये वाईफाई नहीं आ रहा। वाईफाई नहीं आ रहा तो इज दैट माय प्रॉब्लम? मैम प्लीज साइड। बाद में आप अपने फ्रेंड से मंगवा लेना, मोबाइल से फोटो स्नैप लेके मंगवा लीजिए और काम कंप्लीट करिए। प्रज्वल, प्रथमेश, कोई भी आपको फोटो खींच के भेज देगा। समझ में आ गया जतिन? डन मैम। करिए, जॉब लानी चाहिए। डन मैम। Yes, I just went to get some chalks. I've got the chalks now. So shall I have it now? मैम Second answer. Everyone is done. मैम कैमरा थोड़ा सा नीचे करिए, दिख नहीं रहा है। एक थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। आप जब भी बोलते हो ना, पीछे पीछे अपना नाम बोला करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा किसको नहीं दिख रहा है। हाँ मैम मुझे नहीं दिख रहा। भावेश यादव। भावेश, हमेशा सारा प्रॉब्लम तुम्हें ही होते हैं। पूरे क्लास में मेरे 37 बच्चे हैं, सबको दिखाई दे रहा है। मैम दिख रहा है लेकिन नीचे वाला जो है थोड़ा सा वो नहीं दिख रहा है। मैम रीड कर दो मैम। ये देखिए, अब दिखाई दे रहा है? हाँ यस मैम। हेल्प ऑफ द कीपर हो गया? ऑफ द कीपर यस मैम। चलिए, आई एम रबिंग द बोर्ड नाउ। शैल आई रब इट नाउ? यस मैम। ओके, नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3। तब तक आपको क्वेश्चन 3 लिख के रखना है, बैठना नहीं है। मैंने नोट कर लिया। वेरी गुड। मैंने चलिए, क्वेश्चन 3 क्या है? Why did the geese cry help help? Answer 3. The geese cried. राइटिंग अच्छी लिखना, बीच बीच काम नहीं चलेगा। आगे पीछे आपको स्कूल आना ही है, तो ये मत सोचना कि कॉपी तो चेक नहीं हो रही है। हम चेक करने के लिए मंगवा भी सकते हैं। हेल्प हेल्प बिकॉज, वापस वही जो मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन जब वाई से शुरू होता है तो आंसर में हम क्या लगाएंगे? बिकॉज लगाएंगे। तो व्हाई डिड द गीस क्राई हेल्प हेल्प? द गीस क्राइड हेल्प हेल्प because they were trapped in a net, because they were trapped
in a net spread by the hunter. किसने बिछाया था जाल? हंटर ने बिछाया था. Spread by the hunter. उसके बाद क्वेश्चन 4 लिख लीजिएगा. The geese tried help because they were trapped. वो ट्रैप हो चुके थे in a net जाल में spread by the hunter, जो कि हंटर ने उनके लिए बिछाया था, इसलिए वो चिल्लाने लगे help help. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन था व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द geese were dead. जब हंटर ने ये सोचा कि सारे geese तो डेड हैं, तो उसने क्या किया? ठीक है, तो द हंटर स्टार्टेड थ्रोइंग द geese आउट ऑफ द नेट. हंटर ने नेट में से एक एक geese को लेके वन बाय वन उसने नीचे फेंकना शुरू किया. ठीक है, व्हेन ही थॉट दैट द geese were dead, जब उसको लगा कि सारे मर गए हैं, उसने नेट में से एक को निकाला और उनको ग्राउंड पे फेंकना शुरू किया, जो कि आपने कल स्टोरी में पढ़ा था. ओके, डन मैम. हाँ प्रतीक, डन में बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया, आपने ऐसे भी कर दिया और आप कमेंट में लिख सकते हो. हाँ मैम साइड प्लीज. क्वेश्चन 5 लिखो और माइक ऑन मत करो. प्रज्वल ने एक भी बार माइक ऑन नहीं किया है, पर मैं उसके सारे इशारे देख रही हूँ. साइन लैंग्वेज भी कोई चीज होती है. यस भावेश. Write down question number 5. If you have completed, write down question number 5. Bhavesh, completed? Okay. Where is Arav? Gaurav. Last time he could not. Gaurav, have you completed, beta? जल्दी करो, you are very slow. सबसे लास्ट में तुम ही बच जाते हो. Okay, Gaurav has completed. It means everyone is completed. So I am rubbing the board. Everyone is completed. Chale, rub the board, Vedant. Okay, good. Now we will do today's last question, question number 5. Answer 5 I am writing. After that I will end the class
and rest of the work we will do tomorrow. Okay? Okay. So what is question number 5? Question number 5 is, why did the geese pretend to be dead? The geese pretended, क्योंकि did है और pretend है, तो हम उसको क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे pretended. The geese pretended to be dead as advised by the wise old goose to save their lives. उनकी जान बचाने के लिए उन्होंने ऐसा एक्टिंग करी, उनकी जान बचाने के लिए उन्होंने ऐसी एक्टिंग करी कि उन्होंने प्रिटेंड किया कि भाई हम तो मरे हुए हैं. डन मैम. डन मैम. मैम आपने लाइन की स्पेलिंग गलत लिख दी है. इसकी स्पेलिंग गलत है. लाइफ लाइफ की स्पेलिंग सही है बिल्कुल. वो प्लूरल फॉर्म है. लाइफ का प्लूरल लाइव्स होता है. ठीक है, तो ज्ञान देने से पहले थोड़ा अपना नॉलेज चेक कर लिया करें. लाइफ का प्लूरल जो है वो लाइव्स होता है. लाइफ मतलब एक लाइफ, और लाइव्स जब बनाएंगे उसको प्लूरल करेंगे तो एफ हट के बीईएस लगेगा. अंडरस्टूड? जिसने भी बोला उसको. तो आज की क्लास में हमने क्या काम किया? इन टुडेज क्लास वी कंप्लीटेड द न्यू वर्ड्स, द मीनिंग एंड द 5 क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 2. इसके बाद कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, होप यू एंजॉयड द क्लास. और टुडेज होमवर्क इज, एवरी डे आई गिव यू सम होमवर्क. जिस दिन नहीं देती हूँ तो समझ जाया करो कि जो काम करवाया है उसी को लर्न करना है. सो आज आपको जो भी काम करवाया गया, न्यू वर्ड्स लिखवाए तो वो स्पेलिंग लर्न करो, मीनिंग्स है तो मीनिंग्स लर्न करो, और क्वेश्चन आंसर को थॉरोली पढ़ना. और जो आपको पता है, हर्षिता और इनकी क्लास जो जानती है बी वाले बच्चे, कि मेरी आदत है कि मैं एक रजिस्टर बनवाती हूँ. याद है ना आपको? एक रजिस्टर, घर का मोटा रजिस्टर बनवाती हूँ. और जो काम आपको, ये तो आपका क्लास वर्क है, तो जो काम आपको क्लास वर्क में करवाया जा रहा है वही सेम काम आपको होमवर्क में करना है. इससे आपको 2 बेनिफिट होंगे. क्या? पहला, आपका रिवीजन हो जाएगा. दूसरा, आपकी लिखने की स्पीड भी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी. तो इससे आपका फायदा है, मैडम को कोई फायदा नहीं है, आपको बेनिफिट है. ठीक है ना? कितने बच्चे करेंगे? एक रजिस्टर बना लो. वेरी गुड सारिम, हिमानी, प्रतीक, सबने हाथ खड़ा किया है, शाबाश. अखिलेश नहीं कर रहा. अखिलेश सोच रहा है कि मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं अभी तक. मैम ये मेरा रजिस्टर है. वंशिका, रजिस्टर बना भी रखा है आपने अभी से? मैम मैंने होमवर्क भी कर रखा है. ओके. मैम मैंने भी बनाया है. अब मेरी बात सुनिए. मैम मैंने हाँ, जिन्होंने बना लिया वेरी गुड. जिन्होंने नहीं बनाया है, माइक ऑफ. जिन्होंने नहीं बनाया है वो रजिस्टर बनाएंगे. और जो भी मैंने क्लास वर्क करवाया है शुरू से, पोयम 1 से, पोयम 1 लेसन 1, पोयम 2 लेसन 2, अभी हम लेसन 2 पे चल रहे हैं, वो सारा काम उस रजिस्टर में करेंगे अपने रिवीजन के लिए. इज दैट क्लियर? ये आपकी क्लास वर्क नोटबुक है. ओके,
Okay. So bye for now. Take care. Bye, ma'am. Thank you for teaching us. Bye. Bye, ma'am. बाय मैम चली गई क्या बाय बोल वंशिका। हाँ वंशिका, बोल मिस्टर तेरे क्वेश्चन आंसर हो गए क्या? हाँ पक्का दिखा दूं अभी मुझे मीनिंग और क्वेश्चन आंसर तो भेज देगी क्या? ठीक है भेज दूंगी व्हाट्सएप पे मुझे फोटो खींच के भेज देना। अनुज के बोल भाई। वेदांत तूने ना वो साइंस प्रोजेक्ट में लेगा क्या क्या? तू साइंस प्रोजेक्ट में लेगा क्या पार्ट नहीं, मैंने नहीं लिया मेरे को मेरे भाई से फुर्सत मिले तब तो कुछ ऐसा है करूँ। लेगा क्या तू मेरे भाई से मुझे फुर्सत मिले तभी काम कर पाऊंगा। नहीं आता मैं ले रहा हूँ तेरे पास फुर्सत होगी, मेरे पास नहीं। क्लास से बड़ी मुश्किल से करता हूँ। गलत बात है अच्छा, ठीक है बाय हमारी काट कैसे होना है? पापा जरूरत नहीं है काटने की वेदू आगे भी तो बोल। वेदू कौन बोल रहा है क्या कर रहे हो? ओए अनुज के नहीं यार बढ़िया कर रहे हैं, दिख नहीं रहा क्या कर रहे हैं? हाँ वहाँ पे मुझे पता मैं है ये देख था। पापा मुझे क्या पता है आप करें? कितना बड़ा ठीक खा है। लोगे नहीं यार बोलना तो कैमरा ऑन कर पहले कैमरा बंद क्यों लगता है रे तू तू साइंस प्रोजेक्ट लेगा क्या अनुज के नहीं लेगा भाई कौन है? चला गया। अनुज कैमरा ऑन करना। देखो एकता दीदी एकता हिली का एक तो मैडम नहीं। अब खा भी गए हो यार ये गलत ये तो तेरे लिए लाया हूँ मैं। अच्छा अच्छा ये वाला मैं खा लेता हूँ वो वाला आप खा लो मैंने पूरा छू रखा है। कोई बात नहीं एक तारीख का आ रही है। खा ले ये नहीं ले पाए। मेरे नहीं पाऊंगा तो क्या फर्क पड़ रहा है मैं अभी देख रहा एक तो चली गई। पहले बोलने से क्या होता है बोल दिए तो क्या नहीं मेरे को ये वाला चाहिए तो जानबूझ के छोटा दिया आपने मेरे को होता नहीं है वो आधा ही। हाँ तो मुझे वो गुटली भी चाहिए पिन करो एक मुझे गुटली अरे पिन कर अच्छा ये दो चीज मेरे को आप जगह गुटली आप खा मैंने लो तेरे को बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। ये मैंने डील बनाई थी आप डील बना रहे हो यार नहीं ये मैं खाऊंगा हाँ बोल अब ये मेरा हो गया अब मेरा हो गया ठीक है मेरा है चलो वो भी दो चलो मैं ये खा लेता हूँ कच्चा है ये मैं नहीं खाता बोलना मैदान। गलत है ना लाओ दो क्या? अरे पापा फैल जाएगा यार क्या?
इंटरनेशनल है वो। सद्या अम्मा का मैं तो ओए और कौन कौन है, किसका भाई है छोटा? कहाँ पे? वेदांत पीछे हाँ। का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं? देखा ऐसे दो। पीछे का बैकग्राउंड मुझे क्या पता। मेरे को करना है। बात कर रहे हैं जैसे बात, कुछ कुछ लोगों ने पहाड़ लगा लिए, वो उन्होंने पेंट किया होगा, वैसे बैकग्राउंड चेंज नहीं किया होगा शायद। नहीं रे, शायद से इतनी अच्छी कोई पेंटिंग नहीं कर रहा। हाँ वैसे वो भी है। अभी पता है मेरा ये कहाँ पे रहता है फोन, अभी दिखाता हूँ, ये देख यहाँ पे रहता है, ये कंपास बॉक्स है मेरा, इसमें डाल देता हूँ और सीधा कर देता हूँ, पकड़ के और रख दिया। हाँ कहाँ से लिया कुछ? तूने टेबल कहाँ से लिया? मुझे भी चाहिए था क्योंकि स्टडी टेबल ऐसा। चित्तौड़ में से लिया था। रहने दे भाई तू। बनवाया था या रेडीमेड मिला? रेडीमेड। मैंने भी अमेज़न पे देख रखा है, एक दिखाया था। कौन सी? जहाँ से सोफा कम बड़ी है वो, तो जहाँ से जिम की मशीन, अच्छा वो, जहाँ से मेरे दूसरा चॉइस भी है, एडजस्ट भी हो सकता मॉडल वाला भी अच्छा। हो सकता है बैकग्राउंड चेंज भी आता हो, बट मेरे को नहीं लगता हो सकता है। है। हाँ होता है, ऐसी पेंटिंग कोई नहीं कर सकता। मैं सब मैसेज करते देन मैं मैसेज देता हूँ टीचर्स को, पता है। गुड मॉर्निंग मम्मा, बाय। बाय।